بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اچھا، ابھی ہم نے کچھ چیزیں پہلے پریویسلی ڈسکس کر لی ہوئی ہیں اور ہم نے دیکھا اپنے پریویس لیکچرز میں کہ ہم ای بزنس کیا ہوتا ہے، ای بزنس کا ای کامرس سے لنک کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ای کامرس بیسیکلی کس طریقے سے ایز اے ریٹیل اسٹور پہ کام کرتا ہے، اس کا ایک ہم نے ماڈل دیکھا. اور اس کے بعد ہم نے اوور ویو لیا ڈراپ شپنگ کا. تو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں امیزون بزنس ماڈلز اینڈ ارننگ اسٹریمز. ٹھیک ہے، اب امیزون کے اندر ویسے تو بزنس ماڈلز کافی زیادہ ہیں. امیزون کی کچھ اور سروسز بھی ہیں، AWS ہے، امیزون ویب سروسز ہیں، امیزون فائر ہے، امیزون پرائم ہے، اس کے اندر امیزون کی ویڈیو سیریز بھی ہیں، اس کے اندر امیزون میوزک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال لیکن جو حلال بزنسز ہم امیزون کے تھرو کر سکتے ہیں وہ AWS بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک اچھے بزنسز ہیں. لیکن مینلی ہم جن میں ہم ڈیل کرتے ہیں اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ امیزون ایفلیٹ مارکیٹنگ ہے، امیزون FBA ہول سیل ہے، امیزون FBA PL ہے، FBA کنڈل ہے، ریٹیل آربیٹریج ہے. تو بہرحال اس میں ریٹیل آربیٹریج بھی بیسیکلی ایک ایسا بزنس ہے جو تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے. تو مینلی ہمارا فوکس تو ہول سیل اور PL کے اوپر ہوتا ہے. اور کنڈل اور امیزون ایفلیٹ مارکیٹنگ بیسیکلی وہ لوگ کر سکتے ہیں. ایفلیٹ مارکیٹنگ جو مارکیٹنگ میں بہت اچھے ہیں لوگ، اور کنڈل جو لوگ اچھا لکھ سکتے ہیں اور بکس پبلش کرنا چاہتے ہیں اپنی، یا انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ لکھنے والے ہیں کہ ہم اپنی بک کہاں پبلش کریں، تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کے بھی ڈیٹیل کورس آفر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان نیئر فیوچر. تو یہ بیسیکلی کچھ ارننگ سٹریمز ہیں امیزون کے حوالے سے. اب ہم ون بائی ون ان سٹریمز کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب امیزون ایفلیٹ مارکیٹنگ. امیزون ایفلیٹ مارکیٹنگ کے ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس آن لائن جو آلریڈی موجود ہیں. اس میں شیئر سیل ایفلیٹس ایک ہے ویب سائٹ، امیزون ایفلیٹس ہیں جو ہم امیزون کے اوپر کر سکتے ہیں. ای بے پارٹنر ہیں جہاں پہ ہم ایفلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. یہاں میں نے امیزون FBA مارکیٹنگ لکھا ہے، لیکن اس میں اور بھی کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ ایفلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. رکوٹن مارکیٹنگ ایفلیٹس ہیں، اسٹوڈیو پریس ایفلیٹ ویب سائٹ ہے، CJ ایفلیٹ پبلشرز اینڈ پروگرام ہے. تو اس طرح کی ملٹیپل مارکیٹنگ پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اور ایفلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اب بیسیکلی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایفلیٹ مارکیٹنگ ہے کیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایفلیٹ مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کو. تو ایفلیٹ مارکیٹنگ انوالوز ریفرنگ اے پروڈکٹ اور اے سروس بائی شیئرنگ اٹ آن بلاگ، سوشل میڈیا پلیٹفارم، پوڈ کاسٹ اور ویب سائٹ. The affiliate earns a commission each time someone makes a purchase through the unique link associated with their recommendation. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کو مطلب ملٹیپل پروڈکٹس کو بھی آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بلاگ میں، اپنی ویڈیو میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، کسی پوڈ کاسٹ میں یا ویب سائٹ کے اوپر. آپ وہ لنک دے دیتے ہیں اور آپ کے لنک کے تھرو اگر کوئی وہ پروڈکٹ بائی کر لیتا ہے تو آپ امیزون یا آپ مارکیٹ کے ایفلیٹ مارکیٹر بن جاتے ہیں. اور پرچیز کرتا ہے جو بھی بندہ، وہ اس پروڈکٹ کو جب پرچیز کر لیتا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کو سیلر ایک سرٹن اماؤنٹ آف کمیشن شیئر کرتا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے اس کی. اچھا، اب ہم اس کو ایک ڈائیگرام کے تھرو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ایفلیٹ مارکیٹنگ کس طرح ورک کرتا ہے. ایفلیٹ پارٹنر پروموٹس اے برانڈ، پروڈکٹ اور سروسز آن دیئر ویب سائٹ اور پیج اور بلاگ.
ठीक है, कंज्यूमर क्लिक्स ऑन द ब्रांड्स प्रमोशन ऑन एफिलिएट साइट एंड कुकीज इज देन सेव्ड ऑन द कंज्यूमर्स ब्राउजर. उसके बाद कंज्यूमर इज रीडायरेक्टेड टू ब्रांड्स वेबसाइट, और फिर कंज्यूमर परचेज करता है वो प्रोडक्ट ब्रांड की वेबसाइट जब ओपन होती है उसके सामने. द नेटवर्क और एस एक प्लेटफॉर्म है, सास जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, देन ऑटोमेटिकली पेज आउट द कमीशन टू द एफिलिएट फॉर ड्राइविंग दैट सेल. ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो गया. ग्राफिकली आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरीके से ये सर्कल एफिलिएट मार्केटिंग का चलता है, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार है. अगर थोड़े से टैलेंटेड लोग हों और मार्केटिंग के थोड़े से अच्छे स्किल हों तो वो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करके एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, अब हम देखते हैं कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, इसके अंदर यू साइन अप फॉर द अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम. अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम में आपको साइन अप करना पड़ेगा. ठीक है, यू शेयर योर एफिलिएट लिंक यूजुअली इन ए ब्लॉग पोस्ट, जो आपको फिर आपने जब प्रोग्राम में आ गए फिर कुछ प्रोडक्ट्स आप वहाँ से लेंगे और फिर वो आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे, अपने यूट्यूब वीडियो पे, अगर आप यूट्यूबर हैं, या अपनी वेबसाइट के ऊपर के आप अच्छी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं तो आप वो लिंक वहाँ पे शेयर करेंगे, और उसके बाद विजिटर्स टू योर वेबसाइट क्लिक्स द लिंक, और कोई भी विजिट करने आता है और उसको वो प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो वो उस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करेगा, और लिंक टेक्स देम टू द अमेजोन एंड दे बाय समथिंग फ्रॉम देयर एंड यू अर्न ए कमीशन. तो ये सर्कल इस तरीके से चलता है और ये अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से काम करता है. पहले मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया था एफिलिएट मार्केटिंग का, और अब मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग का एक अमेजोन के हवाले से ओवरव्यू दे दिया है और उसका पूरा सर्कल समझा दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि आर्बिट्राज क्या है. अच्छा, आर्बिट्राज के अंदर बेसिकली दो तरह के मॉडल्स होते हैं जो काम करते हैं. एक होता है रिटेल आर्बिट्राज और एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज. अच्छा, आर्बिट्राज की डेफिनेशन देखते हैं कि आर्बिट्राज बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आप मार्केट प्राइस डिफरेंस को कैश करने की कोशिश करते हैं. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मार्केट्स. वो रिटेल मार्केट्स भी हो सकती हैं, वो दो ऑनलाइन मार्केट्स भी हो सकती हैं, वो रिटेल मार्केट से ऑनलाइन मार्केट में सेलिंग भी हो सकती है. स्ट्राइकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैचिंग डील्स दैट कैपिटलाइज अपॉन द imbalance, the profit is being the difference between the market prices at which the unit is traded. तो इस तरीके से भी हो सकता है. अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, दिस मीन्स द रिटेल आर्बिट्रेज इज इन इफेक्ट whenever you purchase a retail product at an awesome discount and then resell it for the profit anywhere. resell it anywhere, online, physical. मतलब कभी ऐसे होता है कि आप एक मार्केट में गए, आपको एक सेल के अंदर एक प्रोडक्ट मिली और आपको वो चीप लगी, आपने घर ला के अपने हमसायों में बेच दी. ये भी एक आर्बिट्राज का मॉडल है. एक मॉडल है कि आपने एक प्रोडक्ट देखी और आपने देखा कि यार ये अमेजोन के ऊपर तो बड़ी एक्सपेंसिव सेल हो रही थी, यहाँ मुझे सेल में अपने घर के पास जो हमारा बेस्ट बाय है या कोई और स्टोर है हमें बड़ी सस्ती मुझे मिल रही है, तो मैं इसको क्यों ना बाय करके मैं ऑनलाइन इसको लिस्टिंग क्रिएट करके ऑनलाइन बेचूं तो मैं इससे प्रॉफिट जनरेट कर लूँगा. तो आप इसको इस तरीके से इस मॉडल को के थ्रू अर्निंग करने को रिटेल आर्बिट्राज या ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं. अच्छा, मैं अब आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से काम करता है. एक मॉडल ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज का कि यू मेक ए प्रॉफिट, यू बाय चीप प्रोडक्ट फ्रॉम ए ऑनलाइन रिटेलर. ऑनलाइन रिटेलर से आपने एक चीप प्रोडक्ट बाय की किसी भी और स्टोर से, लेट्स वाइज ही कि हम ए रख लेते हैं अमेजोन को जिस पे आपने बेचना है, और आपने किसी बी स्टोर से, मतलब इट कैन बी ए वॉलमार्ट, इट कैन बी ए ईबे, प्रोडक्ट आपने बाय कर ली और होल्ड कर ली. ठीक है, प्रोडक्ट गेट सेंड टू यू और टू प्रेप सेंटर. आप उसे अपने पास मंगवा सकते हैं या अपने प्रेप सेंटर भेज सकते हैं. अगर आप अपने नाम से बेचना चाहते हैं, कोई स्पेशल
प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड हैं उस प्रोडक्ट के लिए. द प्रोडक्ट्स आर सेंड टू अमेजोन देन, और वहाँ प्रेप सेंटर से प्रेप होके वो अमेजोन पे जाएंगी, और आपने क्योंकि लिस्टिंग क्रिएट की होगी सेल्स ऑन अमेजोन फॉर ए हायर प्राइस, और जो प्राइस डिफरेंस होगा आपने कम प्राइस पे बाय की और हायर प्राइस पे उसे सेल आउट कर दिया, तो यू मेक प्रॉफिट आफ्टर फीस. जो फीस अमेजोन की है, FBA चार्जेस हैं या सर्टन फीस है जो अमेजोन की, वो पे करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. ये तो हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज कैसे काम करता है. अच्छा, इसमें पहला स्टेप है ओपन एन अमेजोन FBA अकाउंट. आप अमेजोन FBA अकाउंट ओपन करेंगे. इफ यू आर इन द UK, साइनिंग अप फॉर द amazon.co.uk. इफ यू आर इन द USA, यू विल गो एंड साइन अप फॉर द amazon.com. अच्छा, फाइंड profitable inventory. Simply go to online retail stores, find an item that meets the following criteria. अब इसके नीचे क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया है कि थोड़ा सा मैं आपको रिटेल आर्बिट्रेज इस सेंस में समझाने वाला हूँ कि शायद अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने की सीरियस वे में कोशिश करें तो आपको ये सारा मॉडल क्लियर हो जाएगा इन 3-4 स्लाइड्स के अंदर ना. तो आप जाएं और आप इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट करें. सेल्स फॉर द डबल ऑफ द प्राइस, तो ग्रेट बेस्ट सेलर्स रैंक, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल सेलिंग प्राइस, मस्ट सेल एट लीस्ट 3 per month, कैलकुलेट प्रॉफिट. तो ये सब चीज़ें आप करने के बाद, क्राइटेरिया देखने के बाद अगर आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है. वंस यू हैव फाउंड द प्रॉफिटेबल इन्वेंट्री, परचेज इट इन ऑर्डर टू देन रीसेल इट योरसेल्फ. अब आपने इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर कुछ इन्वेंट्री बना ली है, उसका डाटा कलेक्ट कर लिया है, तो आप उसको बाय करें और फिर उसको रीसेल करें. सेंड इट टू FBA, ऐड द आइटम्स टू योर Amazon FBA seller account, and then box and ship the products to the fulfillment center. Amazon uses UPS as their partnered carrier. So if you send your shipments into FBA using UPS, you will be reduced rates on shipping fees as well. ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप हो गया आपका. अब फिफ्थ स्टेप में सेल आइटम्स बाय लेवरेजिंग Amazon's ह्यूज कस्टमर बेस. ठीक है ना, आप उसको Amazon लेवरेजिंग के ऊपर अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो Amazon अपने कस्टमर बेस के ऊपर आपकी इसको ऑटोमेटिक प्राइस एडजस्टमेंट करता है, और यू वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट मार्केटिंग योर इन्वेंट्री टू सेल द आइटम्स एज Amazon इंश्योर्स दैट दिस सेल देमसेल्व्स. तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Amazon खुद इंश्योर कर रहा है, वो खुद ही बेचता रहेगा, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा. रिंस एंड रिपीट द ग्रो. कभी आप इसको करते जाएं और इसको रिपीट करते जाएं प्रोसेस को, और फिर इन्वेंट्री मैनेज करते जाएं. और अगर आपको, लेकिन इसके अंदर एक मसला आता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट आपको सस्ती मिल गई और वो दोबारा भी आपको सस्ती मिल जाए. हाँ, अगर आप इस बिज़नेस को ग्रो कर लेते हैं और आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप करवाना शुरू कर दें. जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, तो आप रिटेल आर्बिट्रेज कर सकते हैं. लेकिन आप अगर किसी ऐसे ब्रांड की कर रहे हैं कि जो रीसेलर राइट्स नहीं ऑफर कर रहा, तो फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसको आप खुद डेवलप करवा सकते हैं और फिर मार्केट कर सकते हैं, तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कुछ अर्सा रिटेल आर्बिट्रेज करें और फिर अपनी प्रोडक्ट डेवलप करवाएं. जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी ग्रो कर जाती है और आपका स्टोर भी बेहतर कंडीशन में आ गया, तो आप इसको चला सकते हैं. जज़ाकल्लाहु खैर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि Amazon Kindle क्या है और ये कैसे काम करता है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि किताबें हमारी बेहतरीन साथी हैं और उनका बेहतरीन ज़रिया है. वो हमें तख़य्युल की दुनिया में ले जाती हैं, वो हमारा इल्म बढ़ाती हैं, लिखने और बोलने की महारत हमें देती हैं और हमारी मदद करती हैं हमारी ज़िंदगी में हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए. मज़ीद ये कि हमारी यादाश्त और ज़हानत को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत अहम और मुफीद किरदार अदा करती हैं. तो किताबों से मोहब्बत जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ होना चाहिए, जो कि जब से हमारा ये सोशल मीडिया आया है, सेल फोन्स आए हैं, टैब्स आए हैं, पॉड्स आए हैं, पैड्स आए हैं, इन्होंने ख़त्म कर दिया. लोग कोशिश तो करते हैं कि PDF की शक्ल में हम अपने टैब्स पे, सेल फोन पे बुक पढ़ने की कोशिश करें, कि वो बहुत कम लोग हैं
جو بک ریڈنگ کرتے ہیں، لیکن بک کا مزہ بک کی شکل میں ہی آتا ہے کہ اگر آپ پراپر طریقے سے بک پڑھیں اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک اچھے بک ریڈر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ لکھنا بھی جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بک رائٹ کر کے پبلش کریں، تو امیزون کنڈل ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے جو وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے جو آپ کو لکھے ہوئے کو آپ کے نام سے پبلش کرے اور آپ کو پیسے بھی دے اور آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، صرف اپنا ڈیٹا دینا ہے اور آپ نے وہ اسکل سیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو اپنی پبلیکیشن کو پبلش کروانا ہے یا کرنا ہے، اور آپ پیسے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے۔ انٹرسٹنگ ہے نا؟ چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی امیزون کنڈل ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ Amazon Kindle is a series of e-reader marked by Amazon. Amazon Kindle allows users to browse, buy, download and read ebooks, newspapers, magazines, and other digital media via wireless networking to the Kindle store. Along with reading facility, it too allows users to publish their own books, novels and stories, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ We can get paid by Amazon when someone will read our uploaded book online or download it. So if you are fond of writing, opportunity to earn money by publishing your writings is right there for you. اچھا، اب ہمیں کتاب لکھنے کے لیے کچھ بنیادی سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن پروسیس سے گزر کے کتاب لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو پبلش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسٹے کنیکٹڈ ود NGP کنسلٹینسی۔ ان آور ایڈوانس کورس وی ول گائیڈ یو ان ڈیٹیل پبلیکیشن میتھڈ آف Amazon Kindle in which you can publish your own book on Amazon Kindle۔ اچھا، اب اس کے اندر ہم آپ کو کیا گائیڈ کریں گے، کیا بتائیں گے، وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سے گریڈینٹس انوالو ہیں ایک اچھی بک رائٹ کرنے میں اور پبلش کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہاؤ ٹو میک اے پلاٹ آف اے بک، ہاؤ ٹو اسٹارٹ رائٹنگ آن یور پلاٹس، ہاؤ ٹو انکلوڈ امیجز ان یور بک، ہاؤ ٹو سلیکٹ دا بک ٹائٹل، how to write table of content and create copyright declaration, how to design a beautiful book cover, how to publish your book on Amazon Kindle, how to make Amazon Kindle growth strategies, how to hire more writers۔ اگر آپ کا بزنس گرو کر گیا ہے تو آپ نے اور رائٹرز کو کیسے ہائر کرنا ہے، how to hire Kindle managers۔ تو Kindle managers ہوتے ہیں جو آپ کا Kindle بزنس کو مینیج کرتے ہیں، وہ آپ نے کیسے ہائر کرنے ہیں، how to make your book famous through social media presence and marketing, how to increase Kindle organic growth۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز نے کاروبار کو آسان اور آرام دہ بنا دیا بہت زیادہ، مطلب آپ سب جانتے ہیں۔ تو امیزون پہ کتابیں لکھیں، امیزون کنڈل کے اوپر شائع کریں اور آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امیزون کنڈل ایک بہترین انتخاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کے رائٹنگ سکلز اچھے ہیں، جو لٹریچر سے محبت رکھتے ہیں اور اس میں گرو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس بزنس میں گرو کر سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں امیزون FBA ہول سیل ماڈل کو۔ بیسیکلی امیزون FBA ہول سیل ماڈل کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، امیزون FBA ہول سیل ماڈل جو ہے بیسیکلی اگر ہم اس کی دیکھیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں یا کس طریقے سے ورک آؤٹ کرتا ہے، تو لو ٹائم کمٹمنٹ ٹو ریسیل اسٹیبلشڈ برانڈ۔ تو آپ کو کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، ایک آلریڈی اسٹیبلشڈ برانڈ ہے جس کو آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اچھا اس سے پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھنا پڑے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ ان آرڈر ٹو سیل ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈفرنٹ پروڈکٹس ٹو کنزیومرز اراؤنڈ دا ورلڈ، Amazon sales platform is supported by more than 2 million third-party sellers worldwide.
So wholesale is the practice of purchasing bulk branded products from another manufacturer or supplier or distributor with the rights of reselling to resell it to the consumers. तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से राइट्स लेते हैं उस प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश ब्रांड है उसको रीसेल करने के लिए, और वो राइट्स लेने के बाद जब हम उस बिजनेस को करते हैं अमेजोन के ऊपर तो अमेजोन FBA होलसेल मॉडल कहलाता है। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वैसे एडवांटेजेस ही हैं इसके, ज़्यादा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ डिसएडवांटेजेस में ये है कि आपका अपना प्राइवेट ब्रांड बिल्डअप नहीं होता, लेकिन बहरहाल एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। नन और मिनिमल डिज़ाइन और मार्केटिंग कॉस्ट, कोई आपकी डिज़ाइन और मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही हैं, लोग उस ब्रांड को जानते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने वो प्रोडक्ट उठानी है। एक सर्टन मार्जिन जो ब्रांड आपको अलाउ कर रहा है 13, 14, 15, 16 व्हाट्सएवर इज ऑफरिंग, आपने उस सर्टन परसेंटेज के ऊपर आपने बस सेल करनी शुरू कर देनी है और नो इश्यूज। लो इंडिपेंडेंस, रिक्यूरीज जो हैं, पार्टनरशिप्स विद ब्रांड ऑनर्स, कोई इतनी आपको आप डिपेंडेंट नहीं है कि आपने उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना है कि जैसे आपने अपने PL के अंदर आप डिपेंडेंट होते हैं कि आपने इन्वेंट्री रिप्लेनिश करनी होती है या कुछ और आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपने उनको लेके चलना होता है और सारी प्लानिंग लेके साथ चलनी होती है। लेकिन इसके अंदर ये है ज़रूर कि आप इंडिपेंडेंस जो है ना वो कम होती इस वजह से है कि अनटिल एंडलेस के आपका एक पार्टनरशिप प्रोग्राम ना चल जाए ब्रांड ओनर्स के साथ या आप एक पार्टनरशिप मॉडल ना क्रिएट कर लें, तब तक आप डिपेंडेंट तो रहते हैं, तो आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो उस लिहाज से कम है। अच्छा, लेकिन लो रिस्क बिजनेस मॉडल विद प्रिडिक्टेबल इनकम के आपको पता है कि आपने 200 यूनिट लिए, आपको पर यूनिट आपको $2 $3 बचने हैं और आपको पता है कि भाई ये इतने अरसे में निकल जाएंगे और मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। हार्डर टू स्केल होलसेल बिजनेस के, अब हाँ ये ज़रूर है कि अभी आप होलसेल बिजनेस को स्केल अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाय बॉक्स शेयर्ड विद द वेरियस अदर रीसेलर्स के, आप अकेले नहीं होते मार्केट के अंदर, आपके साथ और भी कंपेटिटर्स हैं जिन्होंने उसी ब्रांड से, उसी होलसेलर से या रिटेलर से, मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट ली हुई है और वो आपकी आगे या डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो भी आपके साथ सेल कर रहे हैं। तो आप अगर एक ही प्रोडक्ट कुछ लोग मिल के शेयर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो बाय बॉक्स चांसेस है कि आपके पास कम आए। जाहिर बात है कि उसने मुख्तलिफ लोगों में या सेलर्स के अंदर मूव करना है और जो कम प्राइस पे सेल कर रहा होगा ऑब्वियसली उसके पास जाएगा, तो एक प्राइस वॉर कॉन्टिन्यूसली आपकी चलती रहेगी इसमें। और अमेजोन PPC भी आपको, पे पर क्लिक भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में सेल्स बूस्ट करने के लिए लोग चला भी देते हैं। तो ये ऑल टुगेदर किचन इनकम के लिए एक बहुत अच्छा एक मॉडल है अमेजोन FBA होलसेल। जो बच्चे इसे सीख के और सर्विसेज देना चाहते हैं, इसमें एक अच्छा चार्म है इस काम के अंदर और इजी है एज कंपेयर टू अमेजोन FBA PL। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अमेजोन FBA होलसेल जो है ये काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से अमेजोन FBA होलसेल काम करता है। इसमें सबसे पहला इसका जो है स्टेप है वो है प्रोडक्ट रिसर्च, विच टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks, देन ब्रांड अप्रूवल, मिनिमम इट टेक्स 14 days सब्जेक्ट टू द ब्रांड रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, 14 days to 1 month ब्रांड अप्रूवल में लग जाता है अगर आपने लेना है। फिर आपको इसके साथ साथ क्या करना है, वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर और पोर्टल वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट क्रिएशन में 8 to 12 days लग जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च और ब्रांड अप्रूवल एक स्किल है, वेबसाइट डेवलपमेंट एक स्किल है जो आप लोग सीख के और उसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। और
फिर आप जैसे ही आपकी होती है ऑलरेडी क्रिएटेड, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो फिर आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है क्योंकि आपने ब्रांड ने अप्रूव कर दिया। फिर आपने एक नंबर लेना है यूके का, वो बड़ा ज़रूरी है, यूके का, यूएस का, जहाँ जिस मार्केट में भी आप कर रहे हैं तो उससे आपने कॉल्स करके ब्रांड्स को हिट करना होता है और उनको कांटेक्ट करके फिर रीसेलिंग राइट्स लेने होते हैं। जैसे ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आगे आप कंटिन्यू करते हैं। If brand is approved and brand sheet studying for the deep analysis, 2 से 3 दिन लग जाते हैं उसमें। अच्छा जी। प्रेप प्लस शिपमेंट जो इसका 6 स्टेप है वो भाई प्रेप होती है और 7 to 10 डेज में शिप होके वो अमेजोन वेयर हाउस पहुँच जाता है। तो ये कुछ स्टेप हैं, लेकिन इसको आप डीपली स्टडी कर सकते हैं इंशाल्लाह हमारे डिटेल कोर्स में, जो हम इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करेंगे। अपने फ्री बेसिक कोर्स भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, और डिटेल कोर्स भी अवेलेबल होगा हमारे वेबसाइट पोर्टल के ऊपर, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल को, कि जो हमारा कोर फोकस है। और द प्राइवेट लेबलिंग फॉर अमेजोन FBA मीन्स यू सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स on your choice after evaluating it under your own private brand on Amazon। तो होता क्या है कि आप लोग अपनी पसंद जो ऑलरेडी चीज़ें बिक रही हैं Amazon के ऊपर, उनको आप सेल आउट करते हैं अपनी ब्रांड बिल्डिंग करके, अपना प्राइवेट लेबल करके, प्रोडक्ट हंट करके, और फिर उसको सोर्स करके एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चला के, तो अपने ब्रांड को खड़ा करके पर्सनल ब्रांड बनाना और प्राइवेट लेबल क्रिएट करना, ये आप सोलली ऑन करेंगे इस बिजनेस को और ये फ्लिपेबल एसेट बनेगा आपका। वेयर एज अमेजोन FBA होलसेल जो है वो आपका फ्लिपेबल एसेट नहीं है, वो आप ऑब्वियसली वही कंपनी ऑन करती है जिसका ब्रांड है, लेकिन आपके किचन इनकम के लिए एक सेफ एंड पे आप सेफ एंड साउंड प्ले कर सकते हैं उसके अंदर, और एज ए इन्वेस्टर भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं उसमें भी, और एज ए VA भी आप अच्छी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं उसके अंदर, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल में ये है कि आप पार्टनरशिप प्लान के अंदर भी आ सकते हैं। अगर एक अच्छा VA है उसको हम खुद भी पार्टनरशिप्स ऑफर करते हैं, और अगर कोई अच्छा VA है उसको इन्वेस्टर मिल जाता है और वो उसके साथ पार्टनरशिप मॉडल पे आना चाहता है तो वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है, और दूसरा अपने कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, और इस तरीके से चल सकते हैं और एक अच्छा ब्रांड बिल्डअप करके। और कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने अमेजोन FBA PL किया, एक अच्छा VA मिल गया एक इन्वेस्टर को और उन्होंने किया और फ्लिप किया, और दे हैव अर्नड अ लॉट, मतलब इन करोड़्स एज वेल। ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने करोड़ों में कमाया माशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स। तो ये है कि मेहनत का अजर मिलता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि FBA PL किस तरीके से काम करता है। हाई टाइम कमिटमेंट, इसके अभी प्रोज देख रहे हैं। हाई टाइम कमिटमेंट टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, और आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, आपने अपना ब्रांड बिल्डअप करना है। हैव टू इनकर डिज़ाइन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी डिज़ाइन एंड मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी। हाई इंडिपेंडेंस, डजंट रिक्वायर एनी पार्टनरशिप्स, आपको कोई पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं। जैसे होलसेल में क्योंकि ब्रांड ऑन कर रहा होता है ऑलरेडी ब्रांड को, तो फिर आपको पार्टनरशिप करनी पड़ती है, और वो भी रीसेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ब्रांड की ऑलरेडी टर्म्स होती हैं। हायर रिस्क बिजनेस मॉडल वेयर इनकम विल फ्लक्चुएट, मतलब हायर रिस्क तो है कि आप एक $20,000-30,000 की एक PL करते हैं, या 30,000 पाउंड की एक PL करते हैं, प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, और अगर फेल हो जाए तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है। तो रिस्क तो है। ईजियर टू स्केल योर ऑन प्राइवेट लेबल बिजनेस, यहाँ ये है कि आप इजीली स्केल कर सकते हैं इस प्राइवेट लेबल बिजनेस को अपने। हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय बॉक्स, क्योंकि आप ऑनर हैं इस बिजनेस के सोलली, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी है कि आप बाय बॉक्स विन कर सकें। मस्ट यूज़ अमेजोन PPC टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, और अमेजोन PPC के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके प्रोज में आती हैं। अब हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। बेसिकली पहले तो हम एक सिंपल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, प्राइवेट लेबल के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद एक
प्राइवेट लेबल स्टैंड करती है। सबसे पहले है मार्केट सर्च, ठीक है। मार्केट रिसर्च के बाद है प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड सोर्स सप्लायर, आपको सप्लायर ढूंढना है, ठीक है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट कैंडिडेट्स, आपको प्रोडक्ट कैंडिडेट्स ढूंढने जो आपको बना के देंगे प्रॉपर, ठीक है। फिर ब्रांड डेवलपमेंट एंड पैकेजिंग, आपने उसके ऊपर काम करना है, आपका ब्रांड बिल्टअप होगा, आपकी पैकेजिंग डिज़ाइन होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। फाइनल जिस ब्रांड आपने ब्रांड डेवलपमेंट कर ली, पैकेजिंग डिसाइड कर ली, तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होकर आपकी प्रोडक्ट पैक होगी। फिर डेवलप इन्वेंट्री स्ट्रेटजी, फिर इन्वेंट्री आपकी वेयर हाउस में जाएगी, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, फिर लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का फेज स्टार्ट हो जाएगा और वो आपकी वेयर हाउस में पहुंच के फिर सेल होना शुरू हो जाएगी। ये एक जनरल मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल मार्केट में भी यही चलता है और ऑनलाइन मार्केट में भी यही चलता है, लेकिन अब अमेजोन के हवाले से जो मॉडल चलता है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। पीएल प्रोसेस फ्लो क्या होता है, अमेजोन FBA PL बेसिकली। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजोन, अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक एक्टिव सेलर अकाउंट होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड बिजनेस होना ज़रूरी है उस स्पेसिफिक मार्केट में जिसमें आप बिजनेस करने जा रहे हैं। आपका मार्केट बजट डिसाइडेड होना ज़रूरी है, आपने डिसाइड कर लिया होगा आपने कितने बजट में करनी है। यूएसए प्राइवेट लेबल अगर आप यूएसए में करते हैं तो $25,000 to $1 लाख तक भी आप कर सकते हैं और इससे आगे भी जा सकते हैं। यूके में भी ऐसा ही है, 15,000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कनाडा में भी आप $10,000 से लेकर $35,000 तक एक अच्छी आप PL लॉन्च कर सकते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेबल्स जो हैं, आप किसी भी मार्केट में, छोटी बड़ी मार्केट के अंदर आप $10,000 to $15,000 में अच्छी 1-2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करें और आपका एनालिसिस और ROIs और हर चीज़ बड़ी वेल कैलकुलेटेड हो, तो फिर आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि PL का प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें 10 to 20 डेज प्रोडक्ट रिसर्च में लगते हैं, फिर 20 डेज के बाद हमारा सोर्सिंग स्टार्ट होता है जो मेनली फ्रॉम अलीबाबा होता है या जिस भी कंट्री की प्रोडक्ट है उसको हम उस कंट्री से एक्वायर करते हैं। पहले उसके सैम्पल्स अरेंज किए जाते हैं, फिर कस्टमाइज सैम्पल बनाए जाते हैं, सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उसमें से जो बेहतरीन सैम्पल हमारे सामने आता है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जो हमने कंपेटिटर चूज़ किया होता है, उस कंपेटिटर के सैम्पल से हम उसको मैच करते हैं। अगर उसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं तो उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर उसके अंदर कोई मसाइल नहीं है तो हम, या हमारी प्रोडक्ट में कुछ मसाइल हैं तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट में कोई मसाइल है तो हम अपनी प्रोडक्ट को उससे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम एक मेन प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट करते हैं। मीनवाइल कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, यूपीसीज, डमी लिस्टिंग क्रिएशन, ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं सोर्सिंग के दौरान में। और फिर हम लॉन्चिंग एंड रैंकिंग फेज़ में आते हैं। जब हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो शिप हो जाती है आपके टारगेट मार्केट प्लेस के अमेजोन वेयर हाउस की तरफ, और उसमें हमें फ्रेट फॉरवर्डर अरेंज करना होता है, वो हमारी प्रोडक्ट को शिप कर देता है वहाँ पे, और फिर हम उसको रिसीव करके वो डायरेक्ट, अगर आपने अमेजोन भिजवाई है तो अमेजोन चली जाती है। अगर वहाँ पे आपको रिलेटिव हैं या कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपने वहाँ पे हायर किया है तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं और फिर पार्शली उसको अमेजोन वेयर हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मार्केटिंग थ्रू मैनीचैट, फेसबुक, इंस्टा, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, और इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। मेनली PPC से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, कंपेटिटर कीवर्ड्स को उसके अंदर ऐड किया जाता है। फिर मल्टीपल कीवर्ड्स के थ्रू जब PPC कैंपेन बनती है तो उसको मल्टीपल कीवर्ड्स के थ्रू हम उसको नैरो डाउन करते हैं और उसको प्रिसाइज करते हैं कि हम अपने टारगेट कीवर्ड्स को हम रैंक कर पाएँ और हमारी प्रोडक्ट उन कीवर्ड्स पर रैंक हो जाए और उन पेजेस पे, फर्स्ट पेजेस पे नज़र आने लगे। फिर उसके बाद बुक कीपिंग का, रिकॉर्ड हैंडलिंग का एक प्रोसेस होता है जो साथ साथ चलता रहता है, और फिर इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट और प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और इस तरीके से प्रोसेस चलता जाता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सारे प्रोसेसेस क्लियर हो गए होंगे। इनकी अब डिटेल जो है इंशाल्लाह ताला वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे हमारी डिफरेंट वीडियोस में मिलती रहेंगी। और
آگے سر اسامہ آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، اور پھر اس کے اندر سر رضا کے بھی آپ کو پی پی سی کیمپینز اور لسٹنگ کریشن اور برانڈ بلڈنگ کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اسٹیپس ٹو ایف بی اے پی ایل لانچ۔ ابھی جو چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ بی ایس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ وہ ہے جو آپ نے کلائنٹ کو سرو کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں دینی ہیں اور کس طرح کی چیزیں دینی ہیں، کہ مطلب ایک کلائنٹ نے آپ کو کام دے دیا، اب آپ نے اس کو کام کر کے کیسے دینا ہے، اس حوالے سے یہ سٹیپس ہیں امیزون ایف بی اے پی ایل لانچ کے۔ ابھی میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا کہ پروسیس فلو کیسے کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ دینی ہے، جیسے 6 سٹیپس ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں، ہم نے کیا دینا ہے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ میں ہم نے پروڈکٹ ریسرچ رپورٹ دینی ہے، پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے، پروڈکٹ ریسرچ رپورٹ دینی ہے، سیلز پروجیکشن ایسٹیمیٹس دینے ہیں، پروڈکٹ اپروول بائی کلائنٹ جب وہ ہو جائے گی کہ کلائنٹ نے اپروو کر دی، پھر اس کے بعد ہم نے پیٹنٹ چیک کروا کے دینا ہے۔ گوگل پیٹنٹ چیک ایک سمپل پیٹنٹ چیک ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈیپ پیٹنٹ چیک ہم آن لائن فائیور سے اس کا ایکسپرٹ ہائر کر کے ہم اس کے تھرو کروا سکتے ہیں۔ پھر پروڈکٹ سورسنگ ہے۔ اب پروڈکٹ سورسنگ کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنے والی ہیں؟ سورسنگ بجٹ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کلائنٹ کا کیا ہے، سپلائرز ریسرچ اینڈ فائنلائزیشن آف سپلائر، انوینٹری پلاننگ کرنی ہے، پروڈکٹ ڈیزائن اینڈ ٹیکنیکل اسپیکس اس میں ڈالنے ہیں، پروٹوٹائپنگ اینڈ پروڈکٹ اپروول ہم نے کروانا ہے، آرڈر پلیسمنٹ کروانی ہے، مڈ فیز پروڈکٹ اسٹیٹس چیک کرنے ہیں ہم نے، مطلب یہ نہ ہونا کہ آپ کی پروڈکٹ وہاں بن رہی ہو اور یہاں پہ پروڈکٹ کے اسٹیٹس ہی چینج ہو جائیں جو آپ نے ریسرچ کی تھی۔ پھر لاجسٹک کاسٹ مینجمنٹ کرنی ہے، پروجیکٹ کاسٹنگ اینڈ بجٹنگ کرنی ہے، پروڈکٹ لسٹنگ اپروول آپ نے کروانا ہے، ڈمی لسٹنگ بنا کے، اور وہ ساری چیزیں آپ نے مینیج کرتے ہوئے پھر لانچنگ اینڈ رینکنگ فیز کی طرف آنا ہے، جب پروڈکٹ آپ کی بن گئی، ڈیولپ ہو گئی، آپ کے ویئر ہاؤس میں پہنچ چکی ہوئی ہے، پھر اس کی ڈفرینٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں جو ہم اپنے ڈیٹیل کورس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ فیز 1 میں کیا ہوتا ہے، فیز 2 میں کیا ہوتا ہے، فیز 3 میں کیا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں کرنا بھی ہوتی ہیں۔ مطلب جب آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فیزز میں لانچ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے بڑا الرٹ اور ایکٹیو رہنا ہوتا ہے اس ٹائم میں۔ پھر پروڈکٹ رینک ہوتی ہے، پھر پی پی سی کیمپینز بنانا ہوتی ہیں مارکیٹنگ میں اسٹریٹجی، اور پھر مینجمنٹ کرنا ہوتی ہے ان کی، پھر ویل ہیو ٹو بوسٹ آرگینک سیل، سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ، کسٹمر سپورٹ، برانڈ ڈیولپمنٹ، ای بی سی کانٹینٹ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ایک امیزون ایف بی اے پی ایل لانچ کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کلائنٹ کو دینا ہوتی ہیں، اور یہی سب چیزیں سکلز ہیں جو ہم نے کورس کے تھرو ہم نے کرنے ہیں، اور ہم اس سے ایک کلائنٹ سے بہت ہی آسانی سے اگر ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، اگر ایک بی اے یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے اور کر لیتا ہے تو بہت آسانی سے وہ $500 to $600 تک بھی کما سکتا ہے ایک کلائنٹ سے۔ ایک بی اے کم از کم 3 to 4 کلائنٹس ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن شروع میں نہیں ہوگا کہ آپ کو $400 سے $500 ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ جس طرح آپ میچور ہو جائیں گے، آپ سال 2 سال لگا لیں گے، تو آپ آرام سے ایک کلائنٹ سے $400 to $500 اپنی ایکسپرٹیز کے اگینسٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں اسٹریٹجی بلڈنگ بھی کرنی ہے، آپ نے کلائنٹ کو مشورے بھی دینے ہیں، آپ نے اس کو سارا بزنس پلان بھی بنا کے دینا ہے، آر او آئیز بھی کیلکولیٹ کر کے دینی ہے۔ تو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو آن کرتے ہوئے آپ جس طریقے سے سرو کریں گے اتنا آپ ارن کر پائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی اسٹریم ہے، دیکھیں جو مہنگائی کا حال ہو گیا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، کہ اب تو یہی طریقہ بچا ہے کہ ہم پاکستان میں رہیں، ارننگ ہم پاؤنڈز یا ڈالرز میں کریں، اور پھر پاکستان میں اسپینڈ کر سکیں، اور تب بھی ہم سروائیو کر پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کوئی بھی چیز ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بڑی آسانی سے ہو جائے گی، محنت درکار ہے، ہم محنت کریں گے تو ہمیں اس کا پھل ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.